Hello, everybody. This is yet another show. You're watching Radiant Sports Pick World Cup edition. My name is Radhika Khetarpal. With us is Latika Sangwan and Ramesh Sartape. Radiant Sports Pick World Cup edition, a vision to bring the differently abled and the able cricketers together, provide another opportunity, and bridge the gap of the different sports forms. Latika, thank you so much for joining in today. You're a right hand batswoman, played the T20 international cricket in from 11th June 2009. You've been playing. You've had a lot of experience in the Indian cricket, and you're also from Delhi. I'd love to hear more about your cricketing experience. Yeah, surely. First of all, thank you so much to having me here, and I'm really appreciate of your work which you are doing right now for Paralympics and disabled players, and it's really a good initiative by you guys. And for my part, I started my cricket in college time when I came to know about the women's cricketers. So that time I was playing athletics, so my coach just took me from the athletics and joined me in cricket. So from there, I just started my cricketing career in 2000. Oh, you started your career in 2000. Yeah. Wow. So you started from Delhi and now you played for the international team as well. Yes, I played two World Cups in 2009 and 2014, and in between some home series, some home away series. So from there to till now, I just experienced a lot. Now I'm in coaching. I just got retirement in 2020. That was my last as a player season, and now I am into coaching. I've done level 2 from BCCI as a coach, and right now I'm with the Meghalaya team, women's cricket team, senior team. That's really inspiring. Thank you so much for joining in today once again, Latika. Ramesh ji, thank you so much for joining in to Radiant Sports Pick World Cup edition. You're, of course, a very renowned captain of the Indian wheelchair cricket team, and you've got a lot of medals. You've received the Kapil Dev Special Sports Awards. You've represented India in the Asian Cups. Your captaincy has made India win a lot of medals and a lot of, awards. Please share some more detail on your career. सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने ये मौका दिया हमें। और जैसे कि व्हीलचेयर क्रिकेट, जैसे कि सबके इट्स ओनली फॉर क्रिकेट है, पर व्हीलचेयर क्रिकेट होता है ये अभी तक किसी को पता नहीं। और हम लोग एक्चुअली व्हीलचेयर पे ही बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग व्हीलचेयर पे ही करते हैं। और जैसे कि आपने देखा हो, जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट है, अभी बड़े बड़े जंप लगा कैच पकड़ती है, जैसे मेंस में युवराज सिंह है, मोहम्मद के, वैसे ही हमारे खिलाड़ी भी व्हीलचेयर दौड़ा के कैच फील्डिंग करते हैं, सिक्स मारते हैं। मतलब एक है कि एक व्हीलचेयर क्रिकेट का एक अलग अनुभव है। और मैंने एक्चुअली 2019 से स्टार्ट किया था व्हीलचेयर क्रिकेट खेलना, और अब तक मेरे कप्तानी में 45 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, इसका 40 मैच इंडिया जीती है। और अभी फिलहाल हम लोग एशिया कप खेलने गए थे काठमांडू में, पर बैड लक ये था कि वेदर के वजह से 2 मैच हमारे हो नहीं पाए, कि जिसकी वजह से पॉइंट डिवाइड हो चुके और हम पॉइंट टेबल में नीचे रह गए एक्चुअली। तो ये है कि अभी एशिया कप हम खेल के आए कि आए हैं, और व्हीलचेयर क्रिकेट एक अलग गेम है एक्चुअली। Talking about losing, जी Latika, what is your thoughts on today's match? आज क्या लगता है आपको? अभी फिलहाल मैच चल ही रहा है, so बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा आज का प्रेडिक्शन? मैं वही देख रही थी अभी स्कोर, तो यहाँ पे बांग्लादेश ने 245 रन बनाए और न्यूजीलैंड ऑलरेडी जो अपने मैचेस खेली है बहुत मतलब कह सकते हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने। तो मुझे लगता है यहाँ पर बांग्लादेश के बॉलर्स इतना खास कुछ अभी तक तो कर नहीं पाए हैं, बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि रमेश भाई ने भी कहा कि कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे क्रिएट होते हैं, आपको पॉइंट शेयर करने पड़ते हैं, आप बेहतरीन टीम हैं, उसके बाद भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप
पॉइंट टेबल पे नीचे रह जाते हैं। राइट तो ये मैच भी कुछ इसी तरह से है कि कुछ भी सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एक विकेट डाउन हो चुका है। रविंद्रा जो पिछले मैच में काफी अच्छी इनिंग खेली थी, उन्होंने आउट हो चुके हैं। कॉनवे बल्कि अभी भी विकेट पे हैं। केन विलियमसन हैं जो कि खेलने आए हैं, थोड़ा धीरे खेल रहे हैं, पर होपफुली वो बैटिंग अच्छी करते हैं तो टीम के लिए अच्छा ही करेंगे। और इस रिजल्ट को हम अगर बात करें तो आने वाले 10 ओवर में आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा कि किस तरफ जा रहा है। रमेश जी, आपका क्या आज का मैच पे प्रेडिक्शन है? जैसे कि अभी केन्स विलियमसन जो बैटिंग कर रहे हैं, तो उनका तो ऐसा है कि स्टार्टिंग वो स्लो करते हैं, बाद में रन जब चाहिए टीम के लिए तो एक जिम्मेदारी पारी वो खेलते हैं। और 242 मेरे अंदर जो उनके लिए बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि अभी गए मैच में उन्होंने 300 प्लस रन टीम ने मारी थी। तो मेरे अंदाजे ये आगे जाके, जैसे मैम ने कहा 10 ओवर में क्लियर हो जाएगा, तो ये बात सही है। 10 ओवर के अंदर बांग्लादेश का और न्यूजीलैंड का जो भी ये क्लियर हो जाएगी कौन सी टीम आगे जीत रही है करके, क्योंकि बांग्लादेश जो है प्रेशर में जब आती है तो वो विकेट उसके गिरने चालू हो जाते हैं। जी, सो सिमिलर एक्सपीरियंस आपका रहा है बांग्लादेश के व्हील क्रिकेट टीम के साथ भी? क्या ऐसा नया डिफरेंस है एबल बॉडी और डिफरेंटली एबल बॉडी में जो आप बाकी के कंट्रीज के साथ खेलते हैं? एक्सपीरियंस है कि जैसे बांग्लादेश मेन क्रिकेट, जैसे कि जब तो कोई अगर बैट्समैन अगर उनको ज्यादा रन बनाता तो वो बॉलिंग में वेरिएशन लाते हैं या फिर फील्डिंग में कोई गलतियां कर देते हैं। और व्हीलचेयर क्रिकेट का भी हमारे ऐसे ही है कि वो भी प्रेशर के अंदर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते एक्चुअली। कि अगर अभी श्रीलंका के साथ में मैच था उनका, तो श्रीलंका ने 242 रन बना दिए थे, तो वो स्कोर इतना बड़ा था 20 ओवर के अंदर कि उन्होंने आप देखोगे तो 80 रन में वो ऑल आउट हो गई। कि मतलब वो प्रेशर जो हैंडल करना है वो नहीं कर पाती है। और मेंस क्रिकेट का भी ऐसा ही है कि अगर उसे कोई प्लेयर अगर रन मारने लग जाए बॉलर को, तो बॉलर भी परेशान हो जाता है और फील्डर भी परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल। सो टॉकिंग, इसका मतलब है कि मेंटल फिटनेस और अंडर प्रेशर खेलने का एक अलग ही कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। और आपने कैप्टनसी करी है, तो उस समय आपने अपनी टीम को कैसे संभाला था? अंडर प्रेशर किसी सिचुएशन में आपने अपनी टीम को क्या समझाया था? हाँ, मैं मेरी टीम को यही करता हूँ, कोई भी अगर सिचुएशन हो, अपना जो गेम है वो खेलिए, ना कि सामने वाला जो बोल रहा है अगर उसको प्रेशर है और जो रन का ज्यादा बना है, तो अपना अगर गेम आप खुल के जब खेलते हो ना तो रन बनते हैं। अगर बॉलर भी अगर लाइन लेंथ सेम डालता है, अगर ये नहीं कि पहले बॉल पे अगर उसको 4 या 6 गिरे तो वो कुछ चेंजेस करना सोचेंगे। तो अगर आप आपका रियल बॉल जो है वो डालोगे तो उसमें विकेट या कैच या ऐसा विकेट आपको मिलना ही मिलना है एक्चुअली। जी, लतिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने भी 2 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं हमारे लिए, एंड उस समय आपको ऐसे क्या सजेशंस मिले थे अंडर प्रेशर जो आपके पास अभी भी है, और टीम ने उस समय अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि आपके कैप्टन ने अच्छा गाइड किया था? ऐसी सिचुएशन में मेंटल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब आपका जल्दी विकेट चला जाए या फिर आपको रन्स ना मिल रहे हो, तो आपको अपने नर्व्स को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। उस टाइम आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ता है कि जैसा बॉल आ रहा है आप वैसा ही खेलने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा थॉट्स अपने दिमाग में ना आए जो कि आपको मजबूर करता है कई बार गलत तरीके से खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आती हैं, और आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बहुत हेल्प मिलता है कि आप अपने मेंटल स्टेट को उस टाइम कैसे बरकरार रखते हैं, कूल कैसे रखते हैं, उस सिचुएशन में किस तरीके से अपनी पारी को सुधारते हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, विराट कोहली हैं, उनको चेज मास्टर्स सब लोग बोलते हैं, तो उनका मेंटल फिटनेस इतना स्ट्रांग है कि वो जब टारगेट देखते हैं ना सामने, तो वो उसी तरीके से अपनी इनिंग को ढाल लेते हैं कि मुझे इस टारगेट के पास में आना है, पहले मैं इस तरीके से खेलूंगा, उसके बाद मैं पेस करूंगा, किस बॉलर को मुझे अटैक करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं राधिका जी जहां पर हम लोगों को अपना मेंटल फिटनेस को बरकरार रखना होता है थ्रू आउट द गेम। रमेश जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो जो डिफरेंटली एबल क्रिकेट बॉडीज है उसको थोड़ा सा और डिटेल करके हमें थोड़ा और नॉलेज शेयर करें। जी, जैसे कि डिफरेंटली एबल क्रिकेट जिसके अंदर
वेरियस कैटेगरी है, जैसे कि फिजिकली चैलेंज, जिनका पैर और हाथ में प्रॉब्लम है, वो खड़े रह के खेलते हैं, वो फिजिकली चैलेंज में खेलते हैं। प्लस हम व्हीलचेयर क्रिकेट है वो व्हीलचेयर पे खेलते हैं। प्लस इसके अंदर ब्लाइंड क्रिकेट है, डेफ एंड डम क्रिकेट है। लतिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विमेन्स क्रिकेट जब रिकॉग्नाइज हुआ था बीसीसीआई के द्वारा, तो जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग प्लेयर्स थे और उसके बाद जो उनको रिकॉग्निशन और उनको ग्रोथ मिली, उससे क्या फ्यूचर बढ़ा गेम का? देखिए, आई एम सो मच लकी इन दिस, क्योंकि मैंने वो एरा भी देखा है और मैंने ये एरा भी देखा है। मैं उस एरा में भी खेली हूँ और उसके बाद जब रिकग्निशन मिली बीसीसीआई से, मैं उसमें भी खेली हूँ। सो डिफरेंट बहुत रहा है राधिका जी, क्योंकि पहले वो फैसिलिटीज हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती थी जो आज के टाइम में हम लोगों को मिलता है। फाइनेंशियली सपोर्ट जो आज के टाइम में हमें मिल रहा है, उस टाइम सिर्फ पैशन होता था जिसकी वजह से हम क्रिकेट खेलते थे। अगर आप प्रोफेशनल उसके अगर इसको लेके चले फाइनेंशियली, इसके बेस पे आप आगे बढ़ना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं था उस दौरान पे। लेकिन आज के टाइम में देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन डू थ्रू दिस क्रिकेट। तो जैसे कि अब मैंने खेलना छोड़ा है, आई एम इनटू कोचिंग नाउ, आई डू डिफरेंट डिफरेंट एंडोर्समेंट आल्सो। तो इट्स लाइक कि आपको एक एक थोड़ा सा बढ़ावा मिला है चीजों को करने के, रिकग्निशन आपको मिली। और किसी बड़ी एसोसिएशन से या संस्था से जब आप जुड़ते हैं और आपको रिकग्निशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बहुत तरीके से हेल्प करती है। तो कह सकते हैं कि बीसीसीआई एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंडर हम लोगों को भी थोड़ा सा कह सकते हैं रिकग्निशन मिल रहा है, थोड़ा सा लोग भी हमें जानने लगे हैं अभी। तो यस, बहुत बहुत फर्क है और उन दिनों में और आज के दिनों में। रिकग्निशन की हम बात कर रहे हैं, रमेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू पॉइंट है ऑन रिकग्निशन? आप ऑफ कोर्स जाने माने कैप्टन हैं, आपके बारे में बहुत लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, बट बहुत और लोग हैं जिनको आपके बारे में जानना चाहिए, और आप जिस फॉर्म का क्रिकेट खेलते हैं उसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो और इंस्पायर होंगे। लतिका जी ने कहा कि इंडोर्समेंट्स भी आते हैं एक कोई बॉडी का सपोर्ट मिलने से। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है ऑन द रिकग्निशन ऑन द स्पोर्ट? जी, अभी जैसे कि लतिका मैम ने जो कहा कि वुमेन्स क्रिकेट को पहले कैसे था, अभी वही शुरुआत हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट की है कि हमें ओनली फॉर हमारा जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, इस संस्था के अंडर में हम व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि कहीं पे जाना है तो स्पॉन्सरशिप में प्रॉब्लम होती है, एक प्रोफेशनल जैसे ये उसमें प्रॉब्लम होती है, पर हम एक जैसे मैम ने कहा ना कि एक पैशन था खेलने का, तो हम भी उस पैशन के थ्रू ही खेल रहे हैं। अभी आगे देखिए रिकॉग्निशन मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि बीसीसीआई में डिफरेंटली एबल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज देना मतलब ये, जैसे मैंने अभी 5-4 अपनी बॉडी कहा, जैसे फिजिकल चैलेंज, रेफेंडम, ब्लाइंड, इन सभी को देना होगा। तो इतना मुझे लगता है कि इन सभी बॉडी को रिकॉग्नाइज देना और फिर बीसीसीआई का प्रेशर, काम का प्रेशर आना, ये थोड़ा डिफरेंट मैटर है। तो बीसीसीआई इस वजह से हमारी बात भी चल रही है, पर बीसीसीआई अभी इसके अंदर कोई ये नहीं करेगी। वो कह रही है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, जैसे कहीं पे टूर्नामेंट हो, ग्राउंड अवेलेबल कर देना, ये सब नॉर्मल जो चीजें वो दे रही है। पर हम चाहते हैं कि हम जिस अभी जो तकलीफ में जब क्रिकेट चला रहे, जैसे मैम जब कहा कि ब्रेकनेस के पहले उन्होंने बहुत सारी तकलीफ कहा उठाई होगी, जैसे हमने वो जब फिल्म भी आई थी मिताली राज के ऊपर, उसके ऊपर हमने देखा था कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उनको। तो हम भी चाहते हैं कि हमने तो अभी प्रॉब्लम फेस की है, पर आगे अगर रिकॉग्नाइज मिलता है तो एक व्हीलचेयर क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बहुत बीसीसीआई का हाथ अगर हो साथ मिल जाए, तो एक व्हीलचेयर क्रिकेट एक अच्छे लेवल पे हो सकता है।